Chairman Jammu State Chapter PhD CCI, Saifuddin Bhatt Sahab, Honorable MLA Badgam, Sardar Bikramjit Singh Ji, Principal Secretary Industry and Commerce, Government of Jammu and Kashmir, Arun Manhas Ji, Director Industry Jammu, Shri Veludrai Sahab, Joint Director Sahab, SME DFO J&K, H.B. Kumar Sahab, Shamlal Kaisar Sahab, Madam Kanchan Joshi Ji, Lalit Mahajan Sahab, Sanjay Bansal Sahab, अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए उनके प्रेसिडेंट पवन खजूरिया साहब, बीवी कोतवाल साहब, मिस्टर मल्होत्रा साहब, वीरेंद्र कैसर साहब, प्रेसिडेंट उधमपुर, सांबा और कठुआ के रंजीत कुमार साहब, राजकुमार दुबे साहब, good morning to everyone present here. I feel very happy and honored to be the part of this important workshop on intellectual property rights, or what we call IPR. I thank the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and the PhD Chamber of Commerce and Industry for organizing this program. I also welcome all officers, experts, businessmen, students and young entrepreneurs who have joined us today. Friends, intellectual property rights might sound like a big and difficult term, but the idea is very simple. It means that if you create something new, like a specific product, a unique design, a new machine, a logo, even a song, you should have the right to protect it. No one else should copy it or sell it without your permission. Let me explain with some simple examples. McDonald's has its famous golden M symbol. That is their trademark. Apple phone has a special design and technology that is patented. Jammu basmati rice has a special smell and taste. It got a GI tag so that no one from outside can wrongly sell their rice using our name. In Jammu, our scientists created a new type of lavender plant that gives more oil. They patented it, and now our farmers are earning more under the purple revolution. These protections are called intellectual property rights. They help us keep our identity, protect our work, and even better money from it. In Jammu and Kashmir, we have so much talent. Our artisans, weavers, painters, farmers, and startups are creating amazing things. But many people still don't know how to protect their work. That's why programs like this, workshops are very important. They help people understand what IPR is and how it can help them grow. I am proud to say that Umar Abdullah government is taking steps to promote innovation and support new ideas. We have started J&K Startup Policy. An institution like JKEDI are doing a great job by organizing training and awareness programs. We are also promoting GI tags for special products like Basoli paintings, Kashmiri Pashmina, and wood carving, which show our culture and skills to the world. But now we must go one step further. We must make sure that every small business, artist, farmer, or students in Jammu and Kashmir understands how to protect their work and grow their ideas. So my message to all of you
all of you is, if you have a great idea, protect it. If you have a special product, brand it. If you are starting something new, learn about IPR. If you are unsure, ask for help. Our government and institutions like PhD, CII, and MCME are here to support you. By using intellectual property rights wisely, we can make Jammu and Kashmir a land of innovations, culture, and strong business. और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री का, जहाँ जिक्र हुआ, MCME का जिक्र हुआ, आपके मसले और मसाइल का जिक्र हुआ। जम्मू कश्मीर में काफी अरसे बाद आप लोगों की चुनी हुई सरकार आई है। ऑफिसरान, जैसे आपने खुद कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, डायरेक्टर्स हमारे अरुण महाराज जी, इस डिपार्टमेंट ने आपको काफी हद तक मदद की और आपने जहां जहां भी चाहा इनकी हेल्प और मदद का, इन्होंने हमेशा कोशिश की कि आपके इस संकट के दौर में आपके साथ उतरें। इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छे ऑफिसरों की टीम मुझे मिली है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी मेरे पास है, और मुझे खुशी है कि मुझे वो डिपार्टमेंट मिला जिसका जम्मू कश्मीर के अंदर इन 6 सालों के अंदर मैं समझ सकता हूं कि आपको काफी मुश्किलें और मुसीबतें आई हैं, और आज जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री उस मुकाम पे खड़ी है, जो लोकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उस मुकाम पे खड़ी है जहां उस सरकार को उसकी मदद की जरूरत है और आपको सरकार की जरूरत है। दोनों को मिलजुल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज बेरोजगारी के उस चौराहे पे खड़ा है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगार बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। आपके घरों के अंदर भी पढ़ लिख के हायर क्वालिफाइड बच्चे आपके घरों में बेरोजगार खड़े हैं और आज वो जॉब की तलाश में हैं। आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और एक इंडस्ट्री जहां मैं आज खड़ा हूं, क्योंकि आप लोग, जैसे सैफुद्दीन सोद साहब ने कहा, आप लोग जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के रीढ़ की हड्डी हैं, और आपके बलबूते पे ही जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के रोजगार को हम कम कर सकते हैं। इसमें हमने अच्छी इंडस्ट्री लगी, पिछले दौर में 10 सालों में अच्छी इंडस्ट्रियां आई बाहर से, लेकिन बदकिस्मती, मुझे ये कहने में भी कहीं गुरेज नहीं कि बदकिस्मती ये रही कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को जिस तरीके से उस इंडस्ट्री में नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो जॉब नहीं मिले। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहां बाकायदा जब भी कोई इंडस्ट्री बाहर से लगती है, जब कोई इंडस्ट्री आती है, तो वहां के लोकल बच्चों के लिए एक परसेंटेज फिक्स है और आपको भी पता है। बदकिस्मती ये रही जम्मू कश्मीर की कि यहां चुनी हुई सरकार न होने के कारण हमारे बच्चों को वो प्रोटेक्शन नहीं इंडस्ट्रियों के अंदर मिल सकी। लेकिन इस मंच से मैं आपको कह के जाऊंगा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर पे जो धरती पे जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसको हमारे बच्चों को रोजगार देना होगा। हमें इकॉनमी की भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे बच्चों को रोजगार की भी जरूरत है। और कोई ये कहेगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस पे कंप्रोमाइज करेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होगा, उसकी गलतफहमी हम दूर कर देंगे। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि जैसे राकेश मजीद साहब ने कहा, मेरी पुरानी दोस्ती है इनके साथ, किसी वक्त में हम इकट्ठे चले, क्योंकि मेरी शुरुआत जब सियासत में हुई तो उसमें हम दोनों एक चढ़ाई पे बैठे थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे यहां आपके बीच में आने का मौका दिया।
और जब ये आए मुझे मिलने, मेरे पास टाइम नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने 2 बार अपने डायरेक्टर्स को, सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि हम जम्मू के आप लोगों से बात करना चाहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्री है चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि 5 महीने ही हमें अभी हुए हैं, थोड़ा सा समझते हुए टाइम लगा, क्योंकि डिपार्टमेंट भी मेरे पास काफ़ी हैं, हर डिपार्टमेंट को समझने में टाइम लगता है, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा और आपसे मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद मैं आपके, क्योंकि असेंबली ख़त्म हो जाएगी 9 तारीख को, 9 के बाद उद्योग भवन में आपसे मैं बात करूंगा, बैठेंगे, ऑफिसरान बैठेंगे, जो आपने कंसर्न शो किए हैं वजीर साहब ने और कुछ आप बोल नहीं सके, फिर आपसे बात करेंगे, बैठेंगे, चाहे आप अलग अलग इंडस्ट्री स्टेट से आए हुए हैं, आपसे भी बात करेंगे, बड़ी इंडस्ट्रियों से भी बात करेंगे, और जरूरी नहीं कि इकट्ठे करेंगे, अलग अलग भी करेंगे आपसे, और आपके मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी मैं आपसे उम्मीद करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सरकार को आपके जितने भी कोई आइडियाज हैं जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का भी एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए, और जम्मू कश्मीर की सरकार का भी एक ही मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करें और हिंदुस्तान को भी मजबूत करें। इसलिए आपके जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो आपने कुछ तो मैंने सेक्रेटरी साहब ने आपको क्लियर कर दिए, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जब मैं मीटिंग करेंगे आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे और वहाँ बैठ के ज़्यादा मकसद हल होगा, क्योंकि वहाँ कुछ हम डायरेक्शन भी दे सकेंगे, कुछ कर भी सकेंगे। तो लिहाजा आपके आइडियाज़ की मुझे ज़रूरत है, लेकिन जिस टॉपिक पे आप ये वर्कशॉप है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जिस इंडस्ट्री स्टेट से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, अपने इलाके में कॉलेज में जाके, स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चों को अवेयर करिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, वो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। ये चीज़ जानने के लिए इंटेलेक्चुअल ये प्रॉपर्टी का जो हमारा इसका जो मकसद है, ये मकसद हल होना चाहिए। अगर ये मकसद, ये वर्कशॉप का मकसद तो एक है कि हम सब बैठ के यहाँ डिस्कशन करें, और इसके बाद ये लैब में आप बैठे हैं, उसके बाद आपने फील्ड में जाके लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करें, उन लोगों को अवेयर करें जो लोग, मतलब मैं खुद कहूँ कि जब इंडस्ट्री मिनिस्टर, जब मुझे ये महकमा मिला तो मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं, मुझे भी तभी पता चला जब मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग ली, जब उनसे डिस्कशन ली, रिव्यू मीटिंगें ली, तब मुझे पता चला। तो अगर मेरे जैसे आदमी को नहीं पता था तो आम लोगों को कहाँ पता होगा। इसलिए अगर कोई खामी है हम में तो छुपानी नहीं चाहिए, मैं उस तबीयत का आदमी हूँ। हम जम्मू वालों को क्या है, हम जम्मू वाले शर्माते हैं, यार किसी दूसरे को पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं होती, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि मुझे आप कश्मीर में, हम कश्मीर तो करते हैं, लेकिन मुझे कश्मीर में जाने का, जब मिनिस्टर बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, और वहाँ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और मुझे कुछ वहाँ देख के पता लगा कि वहाँ के एक छोटा सा व्यापारी भी कितना अवेयर है। वो जानता है उसके राइट क्या हैं, वो जानता है उसके कानून, उसके लिए क्या क्या कानून बने हैं। और मैं नहीं समझता कि जम्मू में आज भी हमें पता होगा कि जो हमारी नई इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो क्या थी। इसलिए ये चीजें हमें जाननी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा इसके लिए कहीं काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और हम थोड़ा सा शर्माते हैं, जब बिजनेस करना, जब आगे बढ़ना है तो फिर शर्माना नहीं, बल्कि उस नॉलेज को गेन करना है। और मैं भी आपसे यहाँ पे आया हूँ तो कुछ चीजें सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या क्या सीखी हैं वो तो फिर कभी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें सीख के जा रहा हूं। और इसलिए मैंने कहा कि आपके सजेशंस का, आपके आइडियाज का हमेशा मुझे और मेरी सरकार को रहेगा कि आप हमसे शेयर करें। और इस उम्मीद के साथ, और फिर मैं जो दिल्ली से भी हमारे लोग आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे लोगों को, आप लोगों को अच्छी चीजें बता के जाएंगे। और जम्मू कश्मीर जिसका आज एक ऐसे मुकाम पे है कि जहां
बेरोजगारी हमारे सामने खड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसके लिए हम सब मिलके और दिल्ली से भी यही रिक्वेस्ट हमेशा करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें, क्योंकि बड़े हैं, हम छोटे हैं और बड़ों का काम होता है छोटों की मदद करना। इसलिए जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू वालों, एक बात याद रखना, आपका जिस दिन ये ट्रेन मेरे ख्याल 19 को थ्रू हो रही है, ये ट्रेन तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पठानकोट से जब ट्रेन जम्मू तक आई थी, हम पठानकोट बन के ना रह जाएं, ये कहीं आपको सोचना पड़ेगा। ये गौर मैंने चैम्बर्स के लोग, अरुण जी अभी चले गए, मैंने उनको उसमें भी कहा था कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा जम्मू को, क्योंकि आपके पास इतना नहीं है सरमाया, हमारे पास इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम टूरिस्ट को रोक पाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुता है उसको बना के, उसको संभाल के हम सब ने चलना है। हमने हर चीज से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की, हम लोगों का वक्त तो निकल गया, हमारी आने वाली नस्लें आपसे और हमसे सवाल पूछेंगी कि आपने जम्मू के लिए क्या किया था। इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयों से दूर होके जम्मू की इकानमी को मजबूत करें, जम्मू को मजबूत करें। जम्मू मजबूत होगा तो जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। इसी उम्मीद से आपसे विदा लूंगा, फिर कभी आपसे बैठेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। We will be deliberating on this issue that Mr. Kumar is here, where he will be speaking on the various schemes of Government of India for promoting entrepreneurship development. And बहुत ही important इन्होंने एक चीज आप सबको heard it or not. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो है वो बात की जाएगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आखिरकार है क्या, और उसको संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद यहाँ पे मौजूद है। आम जनता किस तरह से अपना रोजगार जो है उसे जनरेट कर सके, किस तरह से अपने कामकाज को बढ़ा सके और इंडस्ट्री में उनके लिए क्या कुछ खास है, इसके ऊपर बात की जाए। उसके चलते आज एक आयोजन यहाँ पे किया गया है और ये 2 दिवसीय वर्कशॉप जो है वो रहने वाली है, ताकि आम जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि इंडस्ट्री में आपके लिए क्या है, किस तरह से बेरोजगार युवा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो इंडस्ट्रीज में पहले से